Hello everyone, welcome to our CSI CP Masterclass. So this is going to be a 12 to 13 lectures series and it's going to take about 2.5 months. And we are going to start from the very basics and we'll make it to be very advanced. We'll go to the very extremes too, so don't worry. This is lecture 0, this is the introductory lecture. If you are comfortable and you already have some experience, you can freely skip this. We'll be starting with our lecture 1 from this week only. So yeah, that's going to be the official start. And this is for the people who don't have much idea, they are not into coding or they are like this is particularly for the first years. So let's start with what is CP? Competitive programming. So firstly, competitive programming is divided into two parts. Design of the problem. So basically, every question will be divided into some subparts, and we can identify them easily. जैसे usually होता है कि ये part करो या so basically we have to have the ability to into some divide the bigger problem into some smaller problem and then add up to the final problem. So हमें सब पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए एंड देन जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एल्गोरिथम और द कोड. So the code has to be efficient and it also has to be run without any errors or and it has to be time and space optimized. So what is time complexity or space complexity? As you may have heard or you will know. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि हर कोड हर मशीन पे अलग अलग टाइम पे रन हो सकता है. कोई पुराने मशीन पे ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड नए मशीन पे जल्दी रन हो सकता है. तो बट ऑनलाइन जब हम कॉन्टेस्ट या कुछ भी देते हैं दे यूजुअली रन ऑन द सर्वर्स सो टाइम कॉन्स्टेंट होता है. बट एक्चुअली टाइम क्या होता है कि हाउ एफिशिएंट इट इज़. जैसे कि हम कोई लूप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं जो कांस्टेंट टाइम लेता है. तो वी काउंट द स्टेप्स बेसिकली कि वो कितना टाइम लेगा इररिलेवेंट. इट डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन बेसिकली. सो कि कितना एफिशिएंट है. और दूसरा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. जब भी हम डीएसए करते हैं या सीपी करते हैं वी यूज समथिंग टू स्टोर और प्रीवियसली अचीव्ड वैल्यूज और एनीथिंग. हम कोई डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं या फिर हम कोई वेरिएबल्स यूज करते हैं वेरिएबल्स एंड या सो उसको भी स्पेस लगता है मेमोरी लगता है जो कि हम एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हुए रहते हैं प्रॉब्लम्स में. सो वो हमें ध्यान में रखना है. एंड so yeah, basically CP is like a contest. CP is a competition where everyone comes and they challenge their logical thinking capability. CP is purely aptitude and maths based. अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है सीपी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज फर्स्ट थिंग दिल चेक इज योर एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड नहीं है सो देखो बड़ी कंपनीज एंड ऑल में क्या होता है कि they don't expect you to learn everything and anything. They just want to know that you are capable of learning what they want to give you. And so technical rounds होते हैं and on campus off campus दोनों के लिए ये equally important है. सब में टेक्निकल राउंड पहले होगा एंड इफ यू क्लियर इट देन ओनली यू विल प्रोसीड टू द इंटरव्यूज. तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है एंड ये क्लियर होना ही चाहिए. क्योंकि जैसे हम कोई ऐप डेव या वेब डेव किसी में भी हम कोई फीचर या किसी भी जैसे स्पॉटिफाई है. स्पॉटिफाई जो हम म्यूजिक रिकमेंड करते हैं उसमें भी सीपी ही यूज होता है. सो या बेसिकली सीपी इज इम्पोर्टेंट एंड इसके बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं. कोच शेफ एक साइट है. तो कोर्सेस नीट कोड एंड इसके प्रॉपर लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं आईसीपीसी एंड क्या ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स है. तो इसमें पार्ट लेके हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा एंड हम काफ़ी या विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग. So, what is DSA? Data structures and algorithms. It is the backbone of programming or CP or anything in general related to this. So,
What is programming actually? See, think of computers as some very fast and efficient but dumb machines. They cannot do anything on their own. So हमको उनको detailed instructions देना पड़ता है so that we get our desired output. And yeah, so basically let's start with data structures जो कि हम यूज़ करेंगे. This series is going to be in C++ and mostly तो pseudo code ही provided होगा, but कोई भी language वाले obviously देख सकते हैं and easy to understand है. But अगर कोई है जिसने अभी तक start नहीं किया है कोई language सीखना या कोई choose नहीं किया है, I would strongly recommend कि C++ से start करें क्योंकि वो काफ़ी fast and efficient है और उसके जो libraries है उसमें already काफ़ी सारे data structures है जो इसमें यूज़ होंगे. सो वो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे. एरे क्या होता है कि उसमें हम कोई भी सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है. उसका पैरेंथेसिस ऐसा होता है एंड उसको डिक्लेयर हम करते हैं अगर उसका नाम मुझे देना है आर एंड देन उसका हम साइज डिक्लेयर करते हैं ऐसे. So this is the data type. C++ yeah, any language in general has some common data types like uh, integer or string or float. So first होता है int, then we have strings, we have floats, we have boolean values. So integer बेसिकली जो हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव इन सब का एक रेंज होता है एंड उस रेंज को अगर हमें एक्सीड करना है देन हम उसके सामने लॉन्ग लगाते हैं या उससे भी ज़्यादा चाहिए देन वी यूज़ लॉन्ग लॉन्ग. सो इससे हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं जैसे कि कोई वेरिएबल है एक्स एंड मुझे उसमें स्टोर करना है द करेंट ईयर 2025. सो मैं ऐसे डिक्लेयर करूँगा इंट एक्स एंड देन आई विल स्टोर द वैल्यू. ये जो इंटीजर है ये बस डिक्लेरेशन के टाइम ही एक बार यूज़ करना होता है. उसके बाद मैं जब भी x को रेफ़र करूँगा आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन. उसके बाद अगर मैं x को x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 डायरेक्टली लिख सकता हूँ. अभी x में स्टोर हो जाएगा वैल्यू 2025 प्लस 1. सो बेसिकली x में अभी हो गया है 2026. स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जैसे कैर इन जनरल या फिर CSI. दिस इज अ स्ट्रिंग. कैरेक्टर इज अ सिंगल लिटरल जैसे कि सॉरी नॉट दिस जैसे कि बस C हो गया. दिस इज अ कैरेक्टर. H इज अ कैरेक्टर. A इज अ कैरेक्टर. जब हम सिंगल कैरेक्टर सिंबल्स यूज करते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं एंड कलेक्शन को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं. फ्लोट में आ जाता है डेसिमल वैल्यूज जैसे 2.5 1.66639 या नेगेटिव भी नेगेटिव 1.098. ये होता है फ्लोट वैल्यूज. बूलियन वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स. ये क्यों यूज होता है कब यूज होता है ये सब हम आगे देखेंगे. सो मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज एरेज में हमें उसका साइज पहले ही डिक्लेयर कर देना पड़ता है. उसके बाद ना वो स्ट्रिंग हो सकता है ना वो एक्सपैंड हो सकता है. तो अगर मैंने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया अब मैं एरे में स्टोर कर सकता हूँ वैल्यूज 1 2 3 4 5. सो मेरे एरे में अभी 5 एलिमेंट स्टोर्ड है एंड हमें ये याद रखना है कि ये ज़ीरो इंडेक्स्ड होता है. ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है इसमें. सो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है एंड देन 1 2 3 4. सो स्टार्टिंग में ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि इसमें एलिमेंट्स 5 है बट देन द रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 4 क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है. एंड या सो बेसिकली दिस इज आरिस. इसके बाद अगर मुझे इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है 6
ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको 5 साइज का डिक्लेयर कर चुका हूँ। इसमें से मैं एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ, बट देन वो उसका मेमोरी ऑलरेडी यहाँ रहेगा। जैसे अगर मैं 5 निकाल दूंगा, दिस दिस मेमोरी विल बी देयर, इट कैन नॉट बी डिलीटेड। एंड ये एक कंटिजियस मेमोरी है, मतलब कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है 2025, तो ये होगा उसका एक एडिशन, उसके नेक्स्ट मेमोरी प्लेस पे ही सेकंड एलिमेंट स्टोर होगा, एंड देन दिस एंड देन दिस। सो इसमें ट्रेवर्सल काफ़ी इजी हो जाता है। ट्रेवर्सल क्या होता है कि ट्रेवर्सल इज बेसिकली विजिटिंग एवरीथिंग एंड ओनली वंस। मतलब कि अगर मैं एक एरे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैं उसके फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक विजिट करूंगा, बट सब सब एलिमेंट्स को एक ही बार विजिट करूंगा, उसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास होता है वेक्टर्स। इसको हम डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर एक कीवर्ड है, उसको यूज करना है। एंड देन कम्स द वेरिएबल नेम वेक्टर का, जो भी मुझे देना है मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ। सॉरी, उसके बाद उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, एंड देन द नेम। सो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है एंड उसका नाम वी है। अब वेक्टर्स का बेनिफिट ये होता है कि वो डायनामिक होते हैं। उनका जो साइज होता है वो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। मुझे इसमें मैंने कहीं पे भी उसका साइज रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। सो मैं इसमें एलिमेंट्स कंटिन्यूसली डालते जा सकता हूँ एंड निकालते भी जा सकता हूँ। इसको इसके और भी काफ़ी फंक्शंस है यूज़फुल, जो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस करते समय। उसके बाद होता है सेट्स। सेट्स क्या होता है कि इसको भी ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, सेट, देन उसका इंटीजर टाइप, डेटा टाइप एंड देन द नेम, सेट एस। सो सेट में कोई भी वैल्यू एक ही बार स्टोर होती है, मतलब कि देयर डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं डाल सकते हम। जैसे कि अगर मैं वेक्टर में या एरे में मैं 1 1 1 2 2 3 4 4 मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, उसको नहीं समझेगा कि ये सेम है कि अलग है। बट सेट्स में मैं ऐसे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूँ। सेट में अगर मैं इंसर्ट करते हैं हम सेट में, अगर मैं इंसर्ट करूँ 1 एंड देन अगर मैं वापस 1 इंसर्ट करने जाऊँ, वो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सेट। सो सेट में बस यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैश मैप्स या मैप्स। इसको हम कह सकते हैं कि की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी होता है वैसे ही इसमें फॉर एग्जांपल हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक की वैल्यू होती है एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो भी हम रख सकते हैं। ये जो की होती है, ये इसको यूनिक होना पड़ता है, बिकॉज हम जब ट्रेवर्स करते हैं हैश मैप या मैप्स में, उसमें हम की के बेसिस पे ट्रेवर्स करते हैं, ना कि वैल्यू के बेसिस पे। जैसे कि अगर मुझे एक क्लास है जिसमें काफ़ी बच्चे हैं एंड मुझे उनका नेम टू रोल नंबर टू नेम मुझे उनका स्टोर करना है। सो नेम तो काफ़ी लोगों का कॉमन हो सकता है, जैसे राहुल, रोहन, आर्यन या कुछ भी। बट जो उनका रोल नंबर है वो यूनिक होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से, उसके करस्पॉन्डिंग है जैसे अभिषेक। सो ये एक की वैल्यू पेयर है, ये इससे आइडेंटिफाई होता है जिसका वैल्यू अभिषेक है। उसके बाद अगर मैं डालूँ सेकंड रोल नंबर पे आर्यन, सो इसका की वैल्यू इज 2 एंड इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो है आर्यन। ये कॉमन हो सकता है, जैसे रोल नंबर 3 का नाम भी आर्यन हो सकता है, बट इसके बाद मैं वापस 3 नहीं डाल सकता क्योंकि दिस इज यूनिक। सो ये होते हैं मैप्स। नेक्स्ट होता है ग्राफ्स। ग्राफ्स बेसिकली नाम सुन के ही कुछ तो आइडिया आ रहा है। उसमें काफ़ी नोड्स होते हैं जो एजेस से कनेक्टेड होते हैं। इसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड ग्राफ्स, जैसे ग्राफ्स कहाँ यूज़ होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हर जगह यूज़ होते हैं। ग्राफ्स जैसे गूगल मैप्स होता है, दे यूज़ ग्राफ्स। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ यूज़ होता है। उसमें एल्गोरिदम्स में हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। जैसे हमें पाथ ए टू बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो हमें उसका शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। एंड यहीं पे आता है डीएसए, क्योंकि डीएसए इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। जो हमने पढ़ा था
टाइम एंड कोड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हम डीएसए से ही अचीव कर पाते हैं। सो ये होता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एल्गोरिदम्स के साइड। देखो एल्गोरिदम्स बहुत है, इनफाइनाइट एल्गोरिदम्स है। सब ऑन द स्पॉट भी बनते हैं, कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। बेसिक एल्गोरिदम्स अगर हम देखा जाए तो होते हैं सॉर्टिंग और सर्च, जो कि मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। सॉर्टिंग मतलब कि अगर मेरे पास एक आई है 2, 3, 1, 100 एंड देन 10, मुझे इसको सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये मैं कैसे करूँगा, उसके काफ़ी प्री डिफाइंड 5 मेन सॉर्टिंग टेक्निक्स है। एंड या सर्चिंग टेक्निक्स इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर्चिंग में जैसे मुझे इसमें से कोई एलिमेंट ढूंढना है, पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि इनपुट आएगा। जैसे n मुझे इनपुट किया है यूज़र ने जो कि है 3, एंड मुझे इसमें 3 ढूंढना है। सो वो हम कर सकते हैं सर्च एल्गोरिदम से। ये सब हम डिटेल्ड में आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सी प्लस प्लस कोड। सो फर्स्ट आता है हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। इसमें जो भी हमारे नेसेसरी फंक्शंस या मेथड्स रहते हैं, जैसे इनपुट लेना, आउटपुट करना या प्रेजेंट करना, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो इस लाइन से हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। सो इससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ के पहले एस टी डी लिखना नहीं पड़ता। वो बेसिक एक सी प्लस प्लस का कन्वेंशन होता है कि एस टी डी लिखना पड़ता है बिफोर एनी फंक्शन दैट वी यूज़ इन द पैकेज। बट व्हेन वी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी हमें वो नहीं लिखने की ज़रूरत है। सो इससे कोड काफ़ी शॉर्टर हो जाता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। उसके बाद आता है एक मेन फंक्शन, इंट मेन, जो कि हमेशा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा नो मैटर व्हाट। इसके अंदर हम सब फंक्शन कॉल्स करते हैं, हमारा जो कोड होता है वो लिखते हैं। सो जैसे कि अगर मुझे दो नंबर्स लेना है यूज़र से एंड उसका सम प्रोवाइड करना है, सो उसका कैसे होगा हम देखते हैं। सो बेसिकली मैं लूँगा दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के, एक्स एंड वाई, एंड हम आगे डालते हैं सेमीकोलन कि वो वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ द डीलिमिटर, जिससे हमें पता चलता है कि वो स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है। तो पहले मैंने लिखा इंट टू शो दैट दिस इज़ अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। फिर आता है दो वेरिएबल्स जिसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं, इंट वन इंट टू भी लिख सकता हूँ, ए बी कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एंड ऑल, बट वो हम आगे देखेंगे, वो इतना यूज़ नहीं होता है। तो जब मैंने इसको इंट एक्स और वाई डिक्लेयर कर दिया, अभी मुझे क्या करना है कि एक्स और वाई को इनपुट लेना है। तो मैं लिखूँगा सी इन एक्स एंड वाई। ये ग्रेटर देन सिंबल दो बार लिखने से उसके बाद हम जो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो सी इन से हम वो इंटीजर का वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अगर यूज़र को प्रॉम्प्ट जाएगा टर्मिनल पे कि ही इनपुट्स अ नंबर, जब वो एंटर करेगा सो वो वैल्यू आके एक्स में स्टोर होगा। एंड अगर मैं उसके तुरंत बाद ये लिखूंगा सो यूज़र कैन इनपुट टू नंबर्स एट अ टाइम इन द सेम लाइन और इन द नेक्स्ट लाइन। सो उसमें मैंने एक्स और वाई के वैल्यूज़ ले लिए, एक्स और वाई अभी पॉपुलेट हो चुका है। अभी मुझे देना है एक्स प्लस वाई। अभी चाहिए तो मैं एक नया इंटीजर बना सकता हूँ एंड सम, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करते ही उसका वैल्यू भी मैं सेट कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई करके, एंड देन आई कैन यूज सी आउट सम। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का सम। अभी इंटीजर टाइप का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि x प्लस वाई, अगर x इंटीजर है y इंटीजर है, देन ऑब्वियसली x प्लस वाई भी इंटीजर ही होगा। सो मैंने एक इंटीजर बनाया सम, जिसमें मैंने स्टोर कर दिया x और y का वैल्यू। अब पहले हम क्या करते थे, हमने x और y को डिक्लेयर किया एंड देन उसका वैल्यू इनपुट किया, या उसके बाद हम उसको पॉपुलेट करते थे। बट इसमें मैंने डिक्लेयर करते ही उसके साथ साथ मैंने उसका वैल्यू भी असाइन कर दिया। फिर उसके बाद जैसे इनपुट लेने के लिए सी इन यूज़ करता है, हम आउटपुट करने के लिए सी आउट यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद लेसर देन दो बार एंड देन जो भी हमें आउटपुट करना है। सो इससे अभी इसका अगर हम ड्राई रन देखेंगे, अगर यूज़र इनपुट करता है 2 और 3,
2 एंटर 3 या फिर 2 स्पेस 3 एंड देन एंटर। सो x में चले जाएगा वैल्यू 2 का एंड y में चले जाएगा वैल्यू 3 का। अब सम जब डिक्लेयर होगा, जब सम इनिशिएट होगा उसमें वैल्यू असाइन होगी 2 + 3 5 एंड देन जब हम सी आउट सम करेंगे उसके स्क्रीन पे आ जाएगा 5। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो अभी हम समझते हैं कंडीशनल्स क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास दो होते हैं, इफ़ और एल्स। इफ़ हम जब यूज़ करते हैं उसके पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं एक कंडीशन, जैसे कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आता है कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। और ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी एंटर होगा जब इफ़ के जो अंदर का कंडीशन है अगर ये ट्रू है तभी ये ब्लॉक एंटर होगा, वरना ये ब्लॉक एंटर नहीं होगा। और यूजुअली हम इसके बाद लिखते हैं एल्स का ब्लॉक, जो कि ऑब्वियस है कि अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स है देन वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा और फिर एल्स का ब्लॉक रन होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो होगा कि अगर मुझे ढूंढना है, दो नंबर्स है मेरे पास, x = 10 और y = 20, और मुझे बस जानना है, मुझे आउटपुट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो मैं लिखूँगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देन इसके अंदर मैं लिखूँगा c, देन इसके अंदर मैं लिखूँगा सी आउट x। अभी इससे अगर x का वैल्यू 10 है और y का 20 है, x इज़ ग्रेटर देन y, इज़ 10 ग्रेटर देन 20? नो। सो ये इफ़ का जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया, सो ये कभी एंटर ही नहीं करेगा ये ब्लॉक को। एल्स क्या है कि इफ़ अभी भले ही ये इक्वल भी हो जाए, अगर ये 20 और 20 भी हो जाता तो भी जो x ग्रेटर देन y का कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि तब मुझे लिखना पड़ता x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन, मतलब कि x हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। अगर इक्वल भी है तो भी वो एंटर नहीं करेगा। एल्स में बाकी सब कंडीशंस आते हैं जो कि x को इफ़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो अभी आ गया एल्स में, और ये 10 ही था, और अगर हमें पता है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है सो ऑब्वियसली कोई एक दूसरे से बड़ा होगा। सो एल्स में मैं सीधा सी आउट कर सकता हूँ y का वैल्यू। सो इसमें हमने ढूंढा कि दो नंबर्स हैं हमारे पास और हमें पता है कि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, सो हमने आउटपुट किया कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब हम समझते हैं लूप्स को। मेनली हमारे पास दो टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। जैसे कि इफ़ का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि इफ़ कीवर्ड आता है एंड देन एक पेरेंट राउंड ब्रैकेट्स में हम उसका कंडीशन लिखते हैं एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में हम उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। वैसे ही फॉर में हम पहले राउंड ब्रैकेट्स में तीन चीज़ें कंपलसरी लिखनी होती है। फर्स्ट होता है कि हम उसमें क्या इनिशिएट कर रहे हैं, जो कि वैल्यूज़। देन आता है उसमें कि जो एंड कंडीशन होता है कि वो लूप कब ख़त्म होगा, क्योंकि लूप एक बार स्टार्ट हो गया तो हमें इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना है, वरना हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो क्या होगा वो भी हम आगे समझेंगे, बट बेसिकली अगर एक फॉर लूप में चला गया तो वो बहुत गंदी प्रैक्टिस होती है एज अ प्रोग्रामर। सो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इनफाइनाइट लूप में ना जाए। सो हमें एक एंड कंडीशन रखना पड़ता है कि वो फॉर लूप कब एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड कंडीशन, या वो फॉर लूप कब तक चलेगा। एंड हम इसमें लिखते हैं अपडेशंस, मतलब कि हर आइट्रेशन में क्या वैल्यूज़ अपडेट हो रही है, मतलब कि तभी तो एंड कंडीशन मीट होगा। अपडेशन अगर नहीं होगा, अपडेट अगर कोई भी वैल्यू नहीं हो रहा है तो एंड कंडीशन कभी मीट ही नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि फॉर लूप कैसे रन होता है। अगर मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, और मुझे ऑलरेडी गिवन है कि एरे का जो साइज़ है वो 5 है। हम देखेंगे कि अगर हमें एरे का साइज़ नहीं भी दिया है तो भी कैसे होगा, बट फ़िलहाल अगर हमें दिया है कि एरे का साइज़ 5 है और हमें उसमें से निकालना है कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। सो फ़िलहाल हमें पता है कि फिफ्थ एलिमेंट जो कि 5 है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है।
बट एज मैंने बोला कि कंप्यूटर्स आर डम और हमें उन्हें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि क्या कैसे वर्क करता है। सो हमें याद है कि ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। सो ये होगा इंडेक्स नंबर 4 पे। और हम एरे के कोई भी एलिमेंट या वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उनके इंडेक्स के बेसिस पे। अगर मैं एक वेरिएबल लूँ इंट एक्स और अगर मुझे उसमें स्टोर करना है एरे का सेकंड एलिमेंट जो कि होगा इंडेक्स नंबर 1 पे। सो मैं एरे का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 आएगा। सो उसका इंडेक्स लिखने से मैं उसके ith इंडेक्स पे जो भी उसका इंडेक्स है उसके nth इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सो या आफ्टर दिस अगर मुझे ढूंढना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है तो इसका स्ट्रक्चर तो बेसिकली वैसा ही होगा, मैं पूरा वापस नहीं लिखूंगा। हैश इंक्लूड है ऊपर, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी है एंड देन इंट मेन है। सो जो भी हम लिख रहे हैं ये सब इंट मेन के अंदर है फिलहाल। सो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एरे गिवन है वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड है एंड हमारे पास एरे का साइज गिवन है इन इंटीजर n। सो अभी हम लिखेंगे फॉर लूप। पहले हम इनिशिएट करेंगे एक वैल्यू से, सपोज इंट i इज इक्वल टू 0। अभी हमें एरे को ट्रेवर्स करना है, हमें हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करना है कि क्या वो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि नहीं, और हमें हर एक एलिमेंट को एक ही बार चेक करना है। सो हम इसको इजीली कर सकते हैं उसके इंडेक्सिंग के बेसिस पे। सो फर्स्ट अगर मैं जाऊँ, हमें लॉजिक सोचना, अभी हमारे थॉट प्रोसेस को हम ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट तक। सो मैंने बोला कि हम उसके इंडेक्स पे एक्सेस कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इंडेक्स 0 से 4 तक जाना है। अभी ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा। और हमें पता है कि वो n-1 है, मतलब कि क्योंकि वो ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है, जो भी साइज़ होगा एरे का उससे एक नंबर कम उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा। सो मैं इसमें एंड कंडीशन लिखूँगा i लेस देन n, मतलब कि i का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट 5 कभी नहीं हो सकता क्योंकि i हैज़ टू बी लेस देन 5 और द एनी वैल्यू जो भी उसका साइज़ है। एंड अपडेट मैं हर वैल्यू, हर आइट्रेशन के बाद i का वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ। i प्लस प्लस मतलब बेसिकली i इंक्रीमेंट, मतलब कि i इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या i प्लस इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। i प्लस प्लस बेसिकली एक इंक्रीमेंट वैल्यू होता है। सो इसके बाद आएगा फॉर लूप का ब्लॉक, जिसमें अभी ये फॉर लूप से पहले हम एक इंटीजर ले सकते हैं जिसमें हम हमारा आंसर स्टोर करेंगे। हम सबसे मैक्स एलिमेंट ढूंढ रहे हैं इसमें क्योंकि जो कि 5 है। हम पहले एक मैक्स वेरिएबल लेंगे और इसको मैं सेट कर दूंगा मिन एलिमेंट से। मिन एलिमेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑलरेडी सी प्लस प्लस में, जो कि सब पॉसिबल जो भी सबसे छोटा इंटीजर होता है सी प्लस प्लस में वो होता है मिन एलिमेंट। सो मैंने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया मेरे मैक्स इंटीजर में। अब ये मैंने क्यों किया समझते हैं। अभी इसके बाद हमने लूप एंटर किया, i का वैल्यू 0 है एंड ये चलेगा i लेस देन द साइज ऑफ द array एंड आफ्टर एवरी आइट्रेशन i विल गेट अपडेटेड। सो अगर मैं एक if कंडीशन लिखूंगा, अगर if max is less than array of I, then max is equal to array of I। अब हम इस if वाले ब्लॉक को समझते हैं। मैक्स में मेरे पास सबसे छोटा एलिमेंट ऑलरेडी है। अगर मैं लिखूँ कि मैक्स इज लेस देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब बेसिकली अभी 0 पे है हम क्योंकि ये फर्स्ट आइट्रेशन है, तो एरे ऑफ आई 1 है। अगर मैक्स का वैल्यू 1 से छोटा है देन मैं मैक्स में उस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। अभी हम ड्राई रन करेंगे इसके बाद तो समझते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट आइट्रेशन आई का वैल्यू 0 है और एरे ऑफ आई का वैल्यू 1 है एंड साथ ही साथ मैक्स का वैल्यू फिलहाल मिनिमम एलिमेंट है जो भी है। सो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये वाला कंडीशन ट्रू है क्योंकि मेन एलिमेंट 1 से छोटा है, तो मैंने मैक्स को अपडेट किया, मैक्स हो गया एरे ऑफ आई मतलब कि 1। अभी इसके बाद
जब यहाँ पे ख़त्म होगा, ये लूप के एंड में आएगा, ये वापस से ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा कि क्या हमारा ये कंडीशन मीट हुआ है। ये अपडेट हुआ, 0 से i का वैल्यू हो गया 1। बट ये क्या अभी भी ट्रू है? क्या i लेस देन n ट्रू है? क्योंकि अभी हमारा i का वैल्यू है 1, ये और भी ट्रू है, सो ये वापस से लूप रन होगा। अब ये जब वापस से रन होगा, मैक्स हमारा है अभी 1 और एरे ऑफ i अभी हो गया एरे ऑफ 1, मतलब कि वैल्यू है 2। सो क्या 1 का वैल्यू 2 से छोटा है? और क्योंकि ये ट्रू है तो ये ब्लॉक में एंटर करेगा और फिर मैक्स का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 2 से, और फिर वापस से कोड के एंड में, ब्लॉक के एंड में i का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 2 से। एंड देन क्योंकि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये वापस रन होगा और फिर ये वापस चेक करते जाएगा। और ये कब तक चेक करेगा? जब हम आ जाएंगे लास्ट आइट्रेशन पे, मतलब कि i का वैल्यू हो जाएगा 4, और तब तक हमारा मैक्स एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 4, और एरे ऑफ i फिलहाल है हमारे पास 5। सो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 4 इज़ लेस देन 5। सो फिर मैक्स वैल्यू अपडेट हो जाएगा 5 से। एंड देन उसके बाद जब ये वापस से आई इंक्रीमेंट रन होगा तो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 5, और ये कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू नाउ, 5 इज नॉट लेस देन 5। सो ये फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एंड में हमारे पास मैक्स का वैल्यू अपडेट होके आ जाएगा 5। सो आफ्टर ऑल द आइट्रेशंस हमने एरे में से सक्सेसफुली उसका सबसे बड़ा वैल्यू रिट्रीव कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। सो फंक्शंस आर बेसिकली मिनी प्रोग्राम्स हमारे प्रोग्राम के अंदर, और हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारा प्रोग्राम का रीयूजेबिलिटी बढ़ता है और रीडेबिलिटी बढ़ता है, और स्ट्रक्चर इन जनरल काफ़ी बेटर हो जाता है। हम डिवीजन कर पाते हैं अच्छे से कि हमारे फंक्शंस क्या क्या है, और जो रीडर है सामने वाले को, उसको भी कोड एनालाइज करने में और समझने में काफ़ी ईजी हो जाता है। सो बेसिकली फंक्शंस भी मैं तुम्हें सीधा सॉल्व करके ही समझाऊंगा। तो समझो कि हम एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिक, जिसमें हमें बेसिक फंक्शंस डालने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। सो ये सब हमारे इंट मेन के अंदर है फिलहाल। इंट मेन को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक सेकेंड। अगर हमारा इंट मेन यहाँ पे है, सो फंक्शंस हम यूजुअली मेन के बाहर ही डिफाइन करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, और फंक्शन का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि एक रिटर्न वैल्यू टाइप, इसके साथ आता है फंक्शन का नेम, और फिर होता है उसके पैरामीटर्स। ये सब हम डीप में समझेंगे, बट फिलहाल हम बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इससे तुम्हें बेसिक आइडिया आ जाएगा। एंड देन हम बढ़ेंगे हमारा फर्स्ट सीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। सो फर्स्ट आता है रिटर्न वैल्यू टाइप, मतलब कि हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। सो अगर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है तो हम यूज़ कर सकते हैं void। इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। बट अगर हमें कुछ रिटर्न करना है, जैसे कि इंटीजर रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है, बूल वैल्यू रिटर्न करना है, सो कैलकुलेटर में हम बेसिकली अभी इन दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं उसको फ्लोट फ्लोट से मैं रिटर्न करना चाहूँगा उसको। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख दूंगा फ्लोट ऐड। अभी पैरामीटर्स क्या होता है? जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा मेरे मेन के अंदर, उसमें मैं पैरामीटर्स सेंड करूँगा, जो कि फंक्शन जहाँ पे भी डिक्लेयर्ड है उसको वो वैल्यूज़ जाएंगे। सो पैरामीटर्स मेरे, मैं बेसिकली दो नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट n1 और इंट n2। मतलब कि जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा, मुझे ये दो पैरामीटर सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। वो फंक्शन कॉल जब भी मैं करूँगा, उसके पैरेंथेसिस में मुझे दो इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैं कोई और डेटा टाइप का वैल्यू भी नहीं सेंड कर सकता, ना ही मैं उसको खाली छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे
खाली छोड़ना है सो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का भी सेट कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा। सो अब आएगा उसका पैरेंथेसिस एंड देन हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। सो अगर मेरे इंट मेन के अंदर मैंने दो नंबर्स n1, इसका नाम अलग हो सकता है पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ पे नाम वेरिएबल का नाम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, बट ताकि इजी हो समझने के लिए मैं सेम नाम ले रहा हूँ अभी। इसके बाद मैंने सी इन किया n1 और n2 को। सो अभी मेरे पास n1 और n2 का वैल्यू आ गया है एंड देन मैं फंक्शन कॉल करूँगा ऐड, और इसमें मुझे अभी दो वैल्यूज पुट करना है जो कि है n1 और n2। और क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से कोई तो वैल्यू रिटर्न आ रही है, और जो कि है फ्लोट। सो यहाँ पे मैं एक फ्लोट एक्स ले लेता हूँ। एक्स में ऐड जब फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्स में एक वैल्यू रिटर्न होगी जो कि फ्लोट टाइप की होगी। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे इंटीजर है और ऊपर फ्लोट है। सो अगर मैं एक इंटीजर 5 है, अगर उसको मैं फ्लोट में लिखूंगा तो वो बस 5.0 हो जाएगा और कुछ नहीं। और 5.0 एक फ्लोट है, भले ही उसका डेसिमल वैल्यू कुछ है नहीं, बट वो 0.0 की वजह से वो फ्लोट हो जाएगा। सो यहाँ पे जब मैंने n1 और n2 पास किया, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है रिटर्न n1 प्लस n2। इससे n1 और n2 का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे रिटर्न होगा उसका वैल्यू। सो यहाँ पे ऐड n1 और n2 के जगह पे जो भी आप इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि अगर n1 2 है, n2 4 है, सो यहाँ पे 2 पास हुआ और यहाँ पे 4 पास हुआ, और यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया और फ्लोट एक्स में उसका वैल्यू सेव हो गया। अब मैं सीधा इसको सी आउट कर सकता हूँ। तो जो भी उसका सम था वो यहाँ पे रिटर्न हो गया और हमने उसको प्रिंट कर दिया। सो बेसिकली फंक्शन जैसे काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कोड शेफ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो अभी हम एक प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोड शेफ के साइट पे। सो इससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे पहले क्वेश्चन गिवन रहता है जो हमें सॉल्व करना है, उसके इनपुट फॉर्मेट गिवन रहता है, आउटपुट फॉर्मेट गिवन रहता है, एंड देन कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन रहते हैं जिसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। हमें सैम्पल इनपुट भी गिवन रहता है एंड देयर इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर ईच टेस्ट केस। यहाँ पे बिल्ट इन आईडी है जहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है, एंड देन दिस विजुअलाइज कोड इज नथिंग बट डीबगर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर स्टेप पे हमारे जो वैल्यूज़ है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, या फिर हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कैसे जा रहा है। एंड देन या सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कूलर डायलेमा टू द समर इज शेफलैंड। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल फिक्शनल क्वेश्चन रहता है यूजुअली। शेफ एक कैरेक्टर है एंड ही इज प्लानिंग टू परचेज अ वाटर कूलर टू कीप हिज रूम कूल। एंड उसके पास दो ऑप्शंस है, ही कैन इधर रेंट अ कूलर एट द कॉस्ट ऑफ एक्स कॉइन्स पर मंथ और ही कैन परचेज अ कूलर फॉर वाई कॉइन्स। Chef wonders what is the maximum number of months for which he can rent the cooler such that the cost of renting it strictly less than the cost of purchasing it. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स बताना है जिसके लिए इट इज़ बेनिफिशियल फॉर शेफ टू रेंट इट rather देन बाइंग इट। एंड इसके इनपुट फॉर्मेट, ठीक है हम पहले सैम्पल पढ़ते हैं एग्जाम्पल। सो पहला इनपुट था टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सो यूजुअली बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें कोड काफ़ी क्वेश्चन सैम्पल केसेस के लिए रन करना पड़ता है। एक इसके लिए रन किया सो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोड सही है, उसको सब एक्सट्रीम केसेस के लिए भी चेक करना पड़ता है। सो ये हमें पूरा कोड टी टाइम्स रन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 है टी, एंड देन एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 12 है, मतलब कि पर मंथ उसको 5 देना पड़ेगा एंड इफ ही बाइज इट देन ही हैज़ टू पे 12 कॉइन्स।
सो पहले मंथ अगर वो 5 देगा एंड दूसरे मंथ 5 देगा मतलब 10 हो जाएगा। सो 10 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 12, बट देन अगर वो थर्ड मंथ 5 देगा 15 हो जाएगा। सो जो 12 को एक्सीड कर जाएगा, तो सो द मैक्स नंबर ऑफ मंथ्स इज 2। सो हमारा आउटपुट 2 है यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोनों इक्वल है एक्स और वाई। तो हमें स्ट्रिक्टली लेस के लिए चेक करना है। सो स्ट्रिक्टली लेस यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। सो इससे बेटर है कि शेफ खरीद ही ले। एंड सो नंबर ऑफ मंथ्स इज 0। सो इसको हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखना है कि इनपुट क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन एन इंटीजर टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सो ये टी टाइम्स रन होगा। तो पहले हम ले लेते हैं इंट टी, और हमने टी को इनपुट कर लिया। अब ये क्योंकि पूरा प्रोग्राम टी टाइम्स रन होगा, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगा सकता हूँ, वाइल टी माइनस माइनस का। सो मैंने तुम्हें फॉर लूप समझाया था। दूसरा होता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप के पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स में बस एक ही चीज़ आती है, जो कि होता है कंडीशन, कि वो वाइल लूप कब तक चलेगा। सो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर दो ही चीज़ें होती है, मतलब हर कंडीशन बेसिकली ट्रू या फॉल्स ही होता है। सो जब तक ये ट्रू है तब तक ये रन होते जाएगा। और सी प्लस प्लस या यूजुअली सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर और नंबर इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू। सो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा T2 है। सो 2 इज़ करस्पॉन्डिंग टू ट्रू। और अगर वाई टी माइनस माइनस में 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। माइनस माइनस इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, वैसे ही माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि एक से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। सो 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। एंड देन 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वो नॉट ज़ीरो है, बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका वैल्यू ट्रू है। फिर जब वापस से ये लूप रन हो जाएगा एंड ऊपर आएगा अपडेशन के लिए, इस बार टी का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब कि फॉल्स। सो वाइल का कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, वो वाइल लूप को एग्जिट कर देगा, ब्रेक कर देगा, एंड फिर वो आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा वाई टी माइनस माइनस, मतलब कि बेसिकली ये टी टाइम्स रन होगा। एंड सेकेंड हमें एक्स और वाई लेना है। तो मैंने लिख दिया इंट एक्स कॉमा वाई एंड देन सी इन एक्स एंड देन आई इनपुट वाई। तो हमारे पास एक्स और वाई के भी वैल्यूज आ गए। तो अभी हमें चेक करना है कि शेफ के लिए ऑप्टिमाइज्ड क्या होगा। तो अगर x इज लेस देन y, अगर s लेस देन y है बेसिकली इस वाले केस में, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि कब तक 5 मल्टीप्लाई हो सकता है कि वो 12 से कम हो। बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूँ विदाउट डिवाइडिंग द रिमाइंडर, मतलब कि डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, तो कोशिएंट आएगा मेरे पास 2 एंड देन रिमाइंडर भी आएगा 2। तो कोशिएंट क्योंकि 2 है एंड हमारा आउटपुट भी 2 है, सो मतलब कि हम 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो डेसिमल में ना जाए हमें, क्योंकि इंटीजर आउटपुट ही चाहिए। सो इफ x इज लेस देन y, हम सी आउट कर सकते हैं x y डिवाइडेड बाय x। एंडल बेसिकली एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता है। जैसे कि ये 2 के बाद 5 और 12 है, हमें एक लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए, तो 2 के बाद अगर मैं एंडल प्रिंट कर दूंगा उसके आगे, तो वो एक नए लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो मैंने सी आउट एंडल किया एंड देन, बट इसमें जैसे एक केस आ जाएगा कि अगर ये 5 है एंड ये 10 है, यहाँ पे 12 की जगह अगर 10 होता, हमारा आउटपुट यहाँ पे 2 आ जाएगा, बट हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट 1 होना चाहिए, क्योंकि जब मैं 5, अगर वो सेकेंड मंथ भी 5 देता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 है, बट हमें स्ट्रिक्टली लेस के लिए चेक करना है। इसने यहाँ पे बोला था इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस। सो अगर वो प्रॉपरली डिविजिबल है, तो उसका एक मुझे कंडीशन डालना पड़ेगा कि इफ y mod x नॉट इक्वल टू 0, तभी मुझे ये करना है। एल्स इसका एक
-1 वैल्यू में डाल दूंगा, एल्स सी आउट 0 एंटर। सो यहाँ पे समझते क्या हुआ, ये जो परसेंटेज है ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, मतलब कि ये मुझे उसका रिमाइंडर देगा। y मॉड x मतलब कि जब मैं y को x से डिवाइड करूँगा तो जो भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो होता है y मॉड x। और एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर। जब हम चेक करते हैं कि x को अगर y के बराबर होना है तो हम y इज इक्वल टू x नहीं लिखेंगे, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि x को y की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर हमें चेक करना है कि क्या वो दोनों इक्वल है तो हम डबल इक्वल टू डालेंगे, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, जिससे हम चेक करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। वैसे ही नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन इक्वल टू। सो अगर y मॉड x नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि वो परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तब मुझे ये करना है। अगर वो परफेक्ट, अभी ये इफ़ में तभी जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स के लिए हमें ये वाली पैरेंथेसिस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसके बाद लिख सकते हैं। बट याद रखो कि ये बस सिंगल लाइन के लिए, अगर ये मल्टीपल लाइन होता तो हमें पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना पड़ता। सो यहाँ पे आ गया सी आउट ऑफ वाई बाय एक्स, जो कि हमारा ओरिजिनल लॉजिक था। अगर वैसा नहीं है, मतलब कि अगर वो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो मुझे उसका एक -1 वैल्यू लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 और 10 होता तो मुझे बस फर्स्ट मंथ का देना है। तो डिवाइड बाय एक्स करके हमें -1 कर देंगे, और ये हो जाएगा अगर x y से कम है। अगर x y के बराबर है या इन केस ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हम 0 मंथ्स के लिए पे करेंगे। सो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपेक्ट लाइन नंबर 20 पे कुछ तो एरर है। ओके, सो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस डाला है तो उसकी वजह से एरर आया है। सो आउटपुट यहाँ पे 2 और 0 आना चाहिए था, हमारा भी 2 और 0 आ रहा है। इसको अभी सबमिट करके देखते हैं। ये बस एक कस्टम इनपुट के अगेंस्ट रन किया हमने, एंड अभी हमारा ये सबमिट भी हो चुका है। सो ये करेक्ट कोड है। अभी ये विजुअलाइज करके देखते हैं हम कि एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ये डीबगिंग टूल है एक, कोडशेफ का जो प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे पहले हमने टी लिया, टी का वैल्यू हमने इनपुट किया जो कि 2 था, एंड वाइल टी माइनस माइनस में हमें डिक्रीमेंट होके टी का वैल्यू 1 हो गया। देन हमने x और y की वैल्यू इनपुट की जो कि 5 और 12 थी। फिर हमने चेक किया कि x लेस देन y है, जो कि ट्रू है, इसलिए ये इफ़ वाले ब्लॉक में घुसा, वरना नहीं जाता ये। एंड हमने चेक किया कि y मॉड x क्या वो 0 है, एंड क्योंकि यहाँ पे y मॉड x क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5, जब हम करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये इफ़ वाला भी ट्रू हो जाएगा, एंड देन ये इसके अंदर जाएगा। सो हमने सीधा सी आउट कर दिया इसका वैल्यू, एंड ये एल्स में कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि इफ़ का वैल्यू ट्रू हो गया। अगर इफ़ वाला ब्लॉक रन होता है देन इट विल नेवर गो इनटू द एल्स ब्लॉक। सो यहाँ पे हमने ये सी आउट कर दिया और ये हमारा आउटपुट हो गया 2, एंड देन वो वापस वाइल लूप में जाएगा फॉर द नेक्स्ट वन। अब ये वाला एल्स भी क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका इफ़ ये था और यहाँ पे x लेस देन y है, इसलिए ये वाला एल्स भी कभी रन नहीं होगा। और जब ये पूरा स्किप हो गया देन अगेन वो वाइल लूप में गया, इस बार वापस डिक्रीमेंट होके टी का वैल्यू 0 हो गया, मतलब नेक्स्ट टाइम ये कभी वाइल लूप रन नहीं होगा एंड हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो इस बार 5 और 5 था, इस बार ये वाला इफ़ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि x इज़ नॉट लेस देन y, इसलिए आप देख सकते हैं कि फ्लो इसमें कभी गया ही नहीं, एंड यहाँ पे हमने 0 आउटपुट करके प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सो ये था पहला क्वेश्चन हमारा। सो तुम्हारा इस वीक का टास्क बस इतना है कि कोडशेफ पे आप लोग एक अकाउंट बनाएं, एंड यहाँ पे थोड़े बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस है कोडशेफ पे। इसका लिंक आपको शेयर हो जाएगा डिस्कॉर्ड चैनल पे, जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।
उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट हम बताएंगे आपको। सो जैसे जैसे आपको ये हम इसके बेसिस पे आपको स्कोर भी करेंगे। सो ये ऐसा लाइटली मत लीजिए। इन द एंड ऑफ द सीरीज हम एक्यूमुलेट करेंगे सब पॉइंट्स और फिर हम एक कॉन्टेस्ट भी रखेंगे। उसके टॉप स्कोरर को कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो या बी कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल।